All right, once again, good afternoon, everyone. This is your course instructor, Kushwant Patnani, and we have today in the class Kartikeya, Tejas, Ayush, Kushal, Mahivesh, Rahul, and Neeraj. So, dear all of you, let us start with the class for the day. Like always, we'll start the class with a short prayer and meditation. Request you all to close your eyes with a broad smile on your face. Take a deep breath in and a deep breath out. Once again, breathe in and breathe out. Once more. Take a deep breath in and a deep breath out. So, now, request you all to join your hands once again and pray along with me. I request all of you once again to join your hands, right, and pray along with me. Dear God, we are your children. We thank you for this life and all the gifts of life. Thank you for all the support, motivation from our parents, family, friends, and mentors. Dear God, I am thankful for your favor on my health, wealth, education, career, wisdom, finances, and my family. Dear God, I know I am being taken care of, I am blessed, and I am loved. I thank you for the dream you have placed in my heart. I thank you for giving me all the strength and wisdom needed to clear and to reach that dream. Dear God, I thank you in advance that I have cleared NEET 2022, JEE Advanced 2022 in flying colors and have been admitted into one of the best colleges of my dreams. Thank you in advance. Thank you. Thank you. Now, slowly and steadily, with a smile on your face, you may open your eyes. Right. All right. So, before we proceed, let us do a quick revision and see if you all are up with this concept, right? So, I'm giving two questions to all of you. The questions are based on what we have read yesterday and uh, what we will be doing today, right? So we are doing the chapter, some important topics which are asked in your practicals, and at the same time, very important topics when you talk about your exams, right? So whether it is JEE or whether it is NEET, every year you get some questions from this topic. So I think yesterday we have completed one part of it. Let us do the next part now, right? Units and measurements. One of the homeworks which I had given yesterday, right? That might have been challenging for some of you to deal with, but do not worry, we'll work on that also. But first, we will see a quick summary or more than summary. Let's see if you're able to first crack these questions, right? Okay.
सो आप लोगों के सामने सवाल कुछ इस तरह से है. पहला सवाल, राइट इट डाउन. इट इज गिवन, it is given that it is given that the diameter diameter of a ball is is measured using a vernier calipers, using a vernier calipers. Diameter of the ball is measured using a vernier calipers. Yesterday we had learned, right, how to find out the diameter or how to take the reading of a vernier calipers, right? So using a vernier caliper. So that is what we had read yesterday. Now we are seeing the application of it. The diameter of a ball is measured using a vernier calipers. It was found that it was, write it down, it was found that sixth division, sixth division of the vernier scale exactly coincides, exactly coincides with, exactly coincides with one division of main scale, right? This is one thing given. Second one which is given is another data. The zero of the vernier scale coincides with zero of the vernier scale coincides with 20th division, 20th division of the main scale, 20th division of the main scale, right? Now it is given that the least count of the vernier calipers, in the question it is given least count of the vernier calipers, of the vernier calipers is equal to, is equal to 0.01, or I'm changing this data, it is equal to 0.02 mm, right? Vernier calipers least count is given as 0.02 mm. It is given that the least division or the least count of the main scale, least count of the main scale, that is the least value which you can measure just using the main scale, is 2 mm, is 2 mm. Now find out radius, find out radius of the ball, right? It is given that zero error, there is no zero error in the device. It is given that there is no zero error, right? Now start off class, everyone. You have 3 minutes of time, get going, right? For this question you have one more question given. Please write this down, write this question also, right? The question says you that you have, again this time it is given that in a vernier calipers, in a vernier calipers, zeroth, just
9 divisions or let's do this one thing. I'll give this question first, please work on this. Meanwhile I'm writing the question, don't worry. ठीक है, पहले इसको शुरू करो, otherwise you mustn't have noted. ये question शुरू करो class, try it out. Okay, so answering the questions now, let me see, there is some chat message. Okay, so Karthik is asking, sir, what topic did in last class? Okay, we did in last class. All right, so Kartikeya, yesterday हमने cover किया है वर्नियर कैलिपर्स में किस तरह से रीडिंग ली जाती है, राइट, एंड सम कॉन्सेप्ट ऑफ द जीरो एरर क्या होता है और उसको कैसे मेजर किया जाता है, कैसे रीडिंग में लिया जाता है. So this is what we have covered yesterday, Kartikeya. I believe some of you were not present yesterday. तो आई विल सजेस्ट वंस अगेन, आप लोग इससे पहले की, जैसे आपको मैंने पहले भी बताया है कि वेन एवर यू आर टेकिंग अ लीव, प्लीज मेक श्योर करो कि मुझे पहले से इन्फॉर्म करो, राइट, कि सर मैं इस रीजन की वजह से नहीं आना चाहता हूँ या आना चाहता हूँ. उसके बाद वील डिसाइड कि आपको आना है कि नहीं आना है, राइट. सो ये एक हमेशा की हैबिट बनाओ सभी लोग, ठीक है, कि पहले से बिना इन्फॉर्म किए यू डोंट हैव टू मिस आउट ऑन क्लासेस, बिकॉज आपके लिए भी वो चैलेंजिंग होता है, फैकल्टी के लिए भी चैलेंजिंग हो सकता है, राइट, टू सी कि बच्चा अचानक से क्लास में क्यों नहीं आया है, क्या रीजन है, राइट. तो मतलब कभी भी ऐसा मत करो आगे से, है ना, मेक श्योर करो कि बिना बताए गायब नहीं होना है, बता के जाओ, राइट. देयर इज नोबडी सेइंग यू, बिकॉज आपका अपना डिसीजन है क्लास नहीं आना, सो जस्ट इन्फॉर्म करो एंड देन डू दैट इफ यू एट ऑल इफ यू प्लान टू. तो ठीक है. और अगर सपोज कोई अर्जेंट सिचुएशन भी होती है तो उस समय भी इन्फॉर्म कर सकते हो. मतलब अगर सपोज पहले से डिसाइड नहीं किया है कि ऐसी ऐसी बात है, हम नहीं आ पाएंगे सर आज की क्लास में, प्लीज बी इन्फॉर्म, बस खत्म बात, है ना. सो नेवर कीप एनीबडी वेटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफ का, सिर्फ अभी नहीं, हमेशा के लिए इसको याद रखो, ठीक है. ओके चलो, बनाओ भाई, क्वेश्चन बनाओ. दैट्स ओके कार्तिकेय, डोंट वरी, बस इसको आगे से याद रखो. मतलब मैं तो आप लोगों के लिए सिर्फ इस एज पर जुड़ा हूँ आपके साथ, जब आप 11th 12th में हो, राइट. Not even maybe let's say 15 or not even 16, right. But then आप जब आगे जाओगे ना, तो आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है कि कभी भी किसी को वेटिंग नहीं रखना है. अगर मतलब डरना नहीं है बताने से, इफ यू हैव टेकन अ डिसीजन, लेट्स से कि सर आज रिजल्ट आ रहा है, मे बी आई हैव कॉल्स कमिंग फ्रॉम द फैमिली, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन वो आपका डिसीजन है क्लास नहीं आना, क्लास तो हो रही है ना. तो आपको बस इंश्योर करना है कि मैं बता दूं कि सर मैं क्लास नहीं आऊंगा, मतलब मुझे जो भी काम है, राइट, दैट इज नेवर अ पॉइंट ऑफ डिबेट, वो आपका अपना डिसीजन है, दैट इज योर इंडिपेंडेंट डिसीजन, बट जस्ट दैट कीप पीपल इन्फॉर्म, दैट्स द ओनली थिंग, राइट. ठीक है. और इंश्योर करो प्लीज आगे से आप लोग की क्लास मिस आउट मत करो, वरना वन क्लास मिस्ड माइट अफेक्ट सम अदर क्लासेस आल्सो, ठीक है. बट देन क्योंकि आप लोग के लिए रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं, सो अगेन आप देख सकते हैं उसको, नो इश्यूज, ठीक है. ऑल राइट, सो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो क्लास, एवरीवन प्लीज नोट डाउन द क्वेश्चन. अगर आपने क्वेश्चन लिख लिया है क्लास तो प्लीज रेज योर हैंड. If you have written the question with you, please raise your hand. Yes, class. Okay, take 2 more minutes. Finish करो, ठीक है. Okay. Everyone has written down. I'll meanwhile then write the next question. तब तक आप लोग इसको finish करो, चलो. देखो फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट वही लगेंगे जो हमने कल सीखा था, राइट, एग्जैक्ट वही चीज है, बस उसको अप्लाई करना है. और ध्यान देना क्या दिया हुआ है और क्या मेजर हो रहा है और क्या पूछा जा रहा है, वो बात पे बस फोकस करो, ठीक है. और जैसे आंसर हो जाए तो मुझे सेंड करो, ठीक है. 1 मिनट और. कुशल आप कुछ भी मान सकते हो, चलेगा, डोंट वरी.
You can basically take it sixth division. Thank you, Kushal, for bringing it into attention. This is sixth division. ट्राई करो सभी लोग, 1 मिनट और है ना. आई आस्क एनी वन टू टेल द अप्रोच. ठीक है, अप्रोच बतानी है पहले, अपने आप क्वेश्चन बनते जाएगा. पहले लिख लो क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में. ठीक है, इट इज 140. ठीक है, मुझे आंसर बताना है तेजस, पूछना नहीं है. आपने बनाया है तो हो सकता है बिल्कुल सही हो, बस मुझे इन्फॉर्म करो कैसे. राहुल, आप प्लीज एक बार मुझसे पहले इन्फॉर्म कर लीजिए क्या रीजन था, आप क्यों नहीं आ पाए थे. वील टॉक अबाउट इट. यूट्यूब पर आपके लिए वीडियोस अवेलेबल होंगे, राइट, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, तो आप लोग देख सकते हो. और ओके गुड, तेजस इज कंफर्मिंग कि उसे आंसर आ गया है. राहुल, आपको क्या नहीं पता है, प्लीज थोड़ा क्लियरली बोलो. आई कैन नॉट गेस इट. सर आई डोंट नो टू डू इट एज आई कुडंट सी. अच्छा, यू डोंट नो हाउ टू डू इट. ओके ओके, गॉट इट. ठीक है बच्चा, कोई बात नहीं, नो वरीज, नो वरीज. ठीक है, बस मेक श्योर करो राहुल बच्चा या जो भी बच्चा नहीं आया है लास्ट क्लास में, कि आप लोग इन्फॉर्म करोगे और उसके बाद स्किप आउट करोगे क्लासेस. ठीक है, इन्फॉर्म करो. इन केस यू नॉट कमिंग, इन्फॉर्म करो बस, और कुछ नहीं. ओके ओके, ऑडियो लैग हो रहा है. ठीक है, क्लास मेरी आवाज किस किस को अच्छे से सुनाई दे रही है, कैन ब्रिंग देयर हैंड्स डाउन. इफ माय वॉइस इज क्लियरली ऑडिबल टू यू, प्लीज ब्रिंग योर हैंड्स डाउन. यस, ओके. सो ओके, सो वीरज, इट सीम्स कि आपके एंड पे कोई नेटवर्क इशू है, बिकॉज सब बाकी सब बच्चों को आ रही है आवाज. लेट्स सी इफ यू कैन वर्क ऑन इट. प्लस ये वीडियो क्योंकि अवेलेबल रहेगा ऑन यूट्यूब, तो जहां पर आपको कोई दिक्कत है वो वहां देख सकते हो. मीन वाइल स्क्रीन पे मैं जितना लिख रहा हूँ ना, उसको कम से कम कॉपी करने की कोशिश करो. अगर मतलब देखो कि बेस्ट क्या कर सकते हो अभी की सिचुएशन में, है ना. तो एक तो वन थिंग, आप नेटवर्क पे वर्क करो इफ यू कैन. एंड सेकेंड, वट एवर आई एम राइटिंग ऑन द स्क्रीन उसको अच्छे से लिखो. ठीक है, लेट्स बिगिन क्लास, है ना. लेट्स बिगिन, लेट्स सी क्या हो रहा है. हमने क्या पढ़ा था. लेट्स टेक वन ऑफ यू. ओके, लेट्स टेक तेजस. ओके, बिकॉज तेजस हैज सेंड द आंसर. लेट्स सी. हाँ तेजस, बताओ, अप्रोच बताओ सबसे पहले सब. सर, टोटल रीडिंग का हमें फॉर्मूला पता है, तो पहले तो मैंने वो लिख दिया, ठीक है, टोटल रीडिंग का विच फॉर्मूला इज सबको बताओ क्या होता है. MSR प्लस VSR. क्या होता है एमएसआर, बताओ. मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग. ठीक है, एक्सेलेंट, आगे बोलो. देन तो हमें फाइंड आउट करना है MSR और VSR. ठीक तो है, क्योंकि दिया है कि बोलो. लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल 2 मिलीमीटर है, और क्वेश्चन में ये दिया है कि 0 ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विद 20th डिवीजन ऑफ मेन स्केल. तो हमें पता है इसको कि यहाँ बना, मेन इसको यहाँ, स्केल. ठीक है, 1 मिनट 1 मिनट. तो ये हमारी सपोज मेन स्केल है, और ग्रीन कलर से बनाते हैं वर्नियर स्केल. ठीक है, तो जब हमने ऑब्जेक्ट को होल्ड किया, तब हमारे पास तब हमारे पास ये रही, ये रहा जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल. ठीक है, ये हमारी वर्नियर स्केल है, ये हमारी मेन स्केल है. ठीक है, हाँ अब बोलो. जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल किससे कोइंसाइड कर रहा है. 20th डिवीजन ऑफ मेन स्केल. ठीक है, 20th डिवीजन, मतलब ये अगर मेन स्केल है तो इसके 20th डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है. ठीक है, तो ये क्या कहलाता है बाय द वे तेजस. क्या सर? ये 20 क्या कहलाएगा अगर ऐसा है तो. मेन स्केल डिवीजन है कि नहीं. अच्छा, यस सर. और एमएसआर क्या हो जाएगा, मेन स्केल मेन डिवीजन स्केल. इनटू लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल, राइट. यस सर. मेन स्केल. ठीक है, बोलो क्या आ जाएगा आंसर. 20 into 2 mm कितना हो जाएगा बोलो. 40 mm. सर ये तो VSD का होता है ना, लेकिन जो ये देखो, फॉर्मूला. देखो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला अब लिखते हैं, वीएसटी पे आते हैं. ये देखो मैंने यहाँ क्या लिखा है, लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल. हाँ या ना. देखो, यस सर. फॉर एग्जाम्पल अभी स्क्रीन पर देखना. ठीक है, इस चीज को दोबारा देखो. हमारे पास एक स्केल है. ठीक है,
स्केल में 10 डिविजन्स का क्या मतलब होता है? मेन स्केल में, हमारी मेन स्केल जिसमें लीस्ट काउंट 1 mm है, 10 डिविजन्स का क्या 10 मतलब? division 1 centimeter. 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर कैसे आया? 10 को 1 mm से मल्टीप्लाई करके आया कि नहीं? अच्छा, है ना? yes sir. 20, अगर यहाँ पर सपोज 20 डिविजन्स है तो 20 डिविजन्स का अच्छा, क्या okay, yes sir, got it. है ना? 20 डिविजन्स, यहाँ पर देखो एवरीवन, 20 डिविजन्स का क्या मतलब है मेन स्केल पर? इरेगुलर एक स्केल देखो, बाकी सब भूल जाओ। 20 डिविजन्स का क्या मतलब है? 20 डिविजन्स 2 centimeter. एक छोटा डिवीजन कितना मेजर कर रहा है? एक डिवीजन अगर 1 mm मेजर कर रहा है तो 20 डिविजन कितना मेजर करेंगे? 20 इंटू 1। अगर एक डिवीजन 2 mm मेजर कर रहा है तो 20 डिविजन कितना मेजर करेंगे? 20 इंटू 2। हाँ या ना? Yes तो sir. रिटर्न फॉर्म में देखो मैं क्या कह रहा हूं कि हमारे पास ये एक बड़ी सी मेन स्केल है, देखना फिर से एवरीवन, ठीक है? You have a big main scale here. Now, on this main scale, what are there? Readings हैं इस main scale पर. ये suppose 0 है, right? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ये 1 सेंटीमीटर है। और अब सपोज मैं बोलता हूँ 7th डिविजन ऑफ द मेन स्केल, क्या मतलब है 7th डिविजन ऑफ द मेन स्केल का? देखो अब सभी लोग, ये रहा सपोज ये 9, ये 8, राइट, ये 7। तो 7th डिविजन ऑफ द मेन स्केल तक अगर रीडिंग आ रही है कोई, तो उसका क्या मतलब है? देखो फिर से देखो सभी लोग ध्यान से, दिस इज 0th डिविजन ऑफ द मेन स्केल, दिस इज 7th डिविजन ऑफ द मेन स्केल। तो 7th डिविजन तक मेजर होने का क्या मतलब है? 7th डिविजन तक मेजर होने का मतलब है कि अगर एक डिविजन का मतलब है 1 mm, अगर एक डिवीजन का मतलब है 1 mm, 7 स्केल डिविजन का क्या मतलब हो जाएगा? इफ 1 MSD इज इक्वल टू 1 mm, राइट, देन इसी को तो मैं लीस्ट काउंट कहता हूँ, हाँ या ना? दैट इज द लीस्ट काउंट। तो 7 मेन स्केल डिविजन का क्या मतलब हो जाएगा? 7 यानी कि जो MSD आया इंटू लीस्ट काउंट, हाँ या ना? किसका? मेन स्केल का। इसी को हम क्या बोल रहे हैं? मेन स्केल रीडिंग। क्लियर हो रहा है बच्चा लोग? आई राइट दिस डाउन अगेन, ठीक है? फिर से देखो एक बार, यहाँ पर जो हमने मेजर किया इसको हम क्या कहते हैं? MSD, यानी कि मेन स्केल डिवीजन। कितना आया? 7। अब मैंने कह रहा है, हमें कहा जा रहा है कि लीस्ट काउंट किसका? मेन स्केल का लीस्ट काउंट। और काउंट मतलब लीस्ट काउंटिंग जो आप मेन स्केल से कर सकते हो, कितनी है? सपोज अगर 1 mm है, कितनी है? 1 mm है। तो अगर 1 mm इज द लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल, देन व्हाट विल बी द MSR, यानी कि मेन स्केल रीडिंग कितनी होगी? जो MSD काउंट हुआ है, राइट, जितने डिविजन्स काउंट हुए हैं, टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल, यानी कि मेन स्केल से जितना आप लीस्ट में मेजर कर सकते हो, राइट, उतना मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ डिविजन से, क्योंकि दिस इज 7 MSD, राइट, 7 MSD। हर MSD का क्या मतलब है? हर MSD का मतलब है 1 mm, राइट? तो इसीलिए 7 MSD का मतलब हो गया एक MSD का मतलब है 1 mm, सॉरी, एक MSD का मतलब है 1 mm। तो 7 MSD का मतलब हो गया सिंपल 7 mm। कैसे आया 7 mm? 7 MSD को मल्टीप्लाई करके आया ना लीस्ट काउंट से, ये लीस्ट काउंट था, इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। बस वही फंडा करना है कि यहाँ पर 7 को 1 mm से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ जाएगा? 7 mm। क्या आ गया ये? MSR। ठीक वही फंडा हमको कहाँ, ये एक एग्जाम्पल था आप लोगों के लिए, ठीक है? अब वही फंडा यहाँ भी लगाना है। यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है MSD कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 20। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल कितना है? पढ़ो सभी लोग। तेजस कितना है बोलो? लीस्ट 2 काउंट millimeter. 2 mm है कि नहीं? तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 40 mm आएगा कि क्या? Yes sir. ठीक है, आगे बोलो। हाँ आगे तो बोलो। equal to 4 centimeter. तो MSR आ गया 4 सेंटीमीटर, ठीक है, आगे बोलो। उसके बाद VSR निकालेंगे, तो VSR का भी सेम रूल जो भी आपने बताया, BSR का VSD into L, least count of
वर्नियर स्केल। VSD के बारे में बताओ। अभी तो अपन ने मेन स्केल की कैलकुलेशंस कर ली। सो क्लास ध्यान से देखना, ठीक है? हमने अभी जो कैलकुलेशंस किए हैं वो मेन स्केल की, ठीक है? अब वर्नियर स्केल पे आते हैं। ओके, ठीक है, अब वर्नियर स्केल देखते हैं, ठीक है? VS, हाँ बोलो अब क्या क्या दिया हुआ है। VSD कैसे निकालोगी, क्या होता है VSD बताओ सबको। वर्नियर स्केल डिवीजन, हाँ हाँ, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि sixth division of vernier scale exactly coincides with one division of main scale. ठीक है, किसी भी एक डिवीजन के साथ, राइट, विद एनी वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल सिक्स्थ डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, तो इसको अपन ने क्या संज्ञा दिया था, क्या नाम दिया था? VSD, हाँ या ना? ठीक है। अच्छा, Yes, लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स कितना है बताओ, क्वेश्चन में क्या दिया है? 0.02 mm. ठीक है, 0.02 mm, ठीक है, लिख लेते हैं। आगे बोलो क्या होगा, VSR तो क्या? VSR निकालेंगे तो 6 into 0.02, मतलब which is मतलब VSD इंटू लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स, ऐसे ही कुछ होगा। yes sir. ठीक है, कर लेते हैं, लिख लेते हैं। So this will give us 6 into 0.02, ठीक है? कितना हो जाएगा बोलो? 1.2 centimeter, पॉइंट 0.12 millimeter, हाँ, and उसको चेंज करेंगे तो फिर 1.2 सेंटीमीटर। बी श्योर, पक्का? यस सर, इंटू 10 करेंगे। देखो, चेक कर लेते हैं। 10 mm मतलब क्या होता है? 1 सेंटीमीटर, हाँ या ना? डिवाइडेड बाय 10 करने से आया कि नहीं? तो इसीलिए इसीलिए 1 mm। ओप्स, सॉरी सॉरी, क्या होता है? बैकवर्ड, मैंने गलत कर दिया। इसीलिए तो चेक किया हमने। 0.012 सेंटीमीटर। बिल्कुल। अब क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या क्या वैल्यूज आ गई बोलो बच्चा? VSR आ गया, और क्या आ तो गया? फिर और VSR आ गया, MSR भी आ गया। MSR भी आ गया। तो देख लो क्लास सभी लोग, बहुत सिंपल है। MSR इज नथिंग बट MSD इंटू लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल, और VSR इज नथिंग बट VSD इंटू लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर स्केल। सिंपल है ना? दोनों के लीस्ट काउंट को उनके डिवीजन से मल्टीप्लाई करोगे तो MSR और VSR आ जाएंगे, वो आ गए। और जब एक बार वो आ गए तो हमने क्या किया, सिंपली उन वैल्यूज को ऐड कर दिया, जिससे क्या आ जाएगी, टोटल रीडिंग। जिससे क्या आ जाएगी, टोटल रीडिंग, ठीक है? तो टोटल रीडिंग कितनी आ गई बताओ? MSR प्लस 4 VSR, VSR, हाँ या ना? कितनी आ जाएगी वैल्यू बोलो? 4 प्लस 4 प्लस 0.1012, 0.012, कितना हो जाएगा बोलो? 4 4.012। बस हो तो गया। इजी था कि नहीं? सिंपल था स्टेप, तेजस? यस सर। ओके चलो गुड, ठीक है। आई थिंक ये जवाब भेज दिया था सम टाइम बैक कुशल ने। एक्सीलेंट कुशल बच्चा, एक्सीलेंट तेजस बच्चा लोग, सभी लोगों को। बच्चा लोग मुझे पहले बताओ, ये प्रोसेस अगर क्लियर है तो रेज योर हैंड। ये किसकी रीडिंग आई है सबसे पहले, वेरी इंपॉर्टेंट, ये किसकी रीडिंग आई है? कुशल, आई जस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, बिफोर यू रेज योर हैंड जस्ट अ मिनट। कुशल बताओ तो ये किसकी रीडिंग आई है? diameter of the ball. हाँ, डायामीटर की रीडिंग आई है ये। तो डायामीटर की रीडिंग इज 4.012 सेंटीमीटर। इसका मतलब, और मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है देखो, बताओ। Radius of the ball. हाँ, रेडियस ऑफ द बॉल पूछा जा रहा है, तो उसे निकाल लेते हैं वो। देखो क्या हो जाएगा। तो वी हैव डायामीटर इज इक्वल टू रीडिंग, है कि नहीं? कितना आया था बोलो तो कुशल? 2.0 नहीं डायामीटर, डायामीटर कितना आया? 4.01 राइट? 4.012. ठीक है, तो Yes, sir. अब रेडियस निकालते हैं। रेडियस कितना है देखो बच्चा, डायामीटर बाय 2, करेक्ट? सिंपल है ये तो। Yes, sir. कितना हो जाएगा? Yes. 2.006 सेंटीमीटर, है ना? तो क्वेश्चन में कई बार इस तरह से आपके साथ खेल जाते हैं। मतलब आप देखो, शुरू से लेकर अपन ने यहाँ से लेकर फ्रंट एंड से लेकर यहाँ तक सब कुछ सही किया, लेकिन अगर आपने एंड वाली चीज ध्यान से नहीं पढ़ी तो इट माइट एंड अप इन गिविंग अ रॉन्ग आंसर। तो अगर बचना है गलत आंसर से,
सही आंसर की तरफ जाना है तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो दिस इज वेयर योर अवेयरनेस कम्स इनटू प्ले, अपना अवेयरनेस का लेवल हाई रखना है। तो हम लोग जो मेडिटेशन करते हैं ना, पता है क्या होता है, दिस मेडिटेशन इज मैजिक फॉर योर सोल, ये याद रखना, मेडिटेशन इज मैजिक एंड मेडिकेशन फॉर द सोल, आई राइट इट हियर। हम जो क्लास में छोटी सी डीप ब्रीदिंग करते हैं उसका पर्पस क्या है, उसका यही तो पर्पस है कि क्लास शुरू होने से पहले आपका मन शांत हो जाएगा, right? Somebody who is peaceful in the mind, somebody who has meditated, उसने अपने माइंड को क्या दे दिया, मेडिकेशन। ये जो मेडिकेशन वर्ड है कहाँ से आया, मेडिक, राइट? मेडिक मतलब क्योर होना, हील होना, तो मेडिटेशन वर्ड भी वहीं से आया है। मेडिटेशन इज द क्योर फॉर द माइंड, राइट? तो इट इज मेडिटेशन। ये क्या करता है, ये आपके अवेयरनेस लेवल को बढ़ा देता है, योर अवेयरनेस लेवल। सिर्फ ये तो सिर्फ एक छोटा सा एडवांटेज है ये, अदरवाइज तो मेडिटेशन ऐसा मैजिक है, जिसने इसके प्रभाव को जी लिया, दैट पर्सन विल बी द लकीएस्ट ऑन द अर्थ, राइट? लेकिन वन ऑफ द प्राइमरी एडवांटेजेस इज आपका अवेयरनेस बढ़ जाता है। अवेयरनेस बढ़ना मतलब आप केयरफुली हर चीज समझोगे और पढ़ोगे, राइट? तो इसीलिए छोटी छोटी चीजों में केयरफुल होना, ठीक है। गुड, एक्सीलेंट बच्चा, एक्सीलेंट क्वेश्चन, ठीक है। क्लास, इन केस यू ऑल हैव very clearly listen to me, and in case the concept is clear, please raise your hand. I think Rahul और धीरज, अब आप लोगों को शायद जो हमने पढ़ा उससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना? हमने कुछ कुछ ऐसे ही पढ़ा था बच्चा, लेकिन पूरी क्लास को अटेंड करो, ठीक है, यूट्यूब पर। और हमारा जो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन होता है इस चैप्टर के संदर्भ में, फिर भी कोई डाउट हो तो वहाँ पूछ लेना, नो वरीज, ठीक है। ऑल राइट, सभी लोग हैंड रेज करिए इफ द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। यस बच्चा लोग, if the question and the solution is clear, hand raise करिए। yes बच्चा। राहुल बच्चा, कोई डाउट है तो ऐसा करो, प्लीज आस्क दिस टू मी इन द कमिंग प्रैक्टिस क्लास, ठीक है। ऑल राइट, ठीक है, राइट। सो क्लास, मैं आप लोगों को आज एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। यू कैन ब्रिंग योर हैंड्स डाउन, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। सो आप आज हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट भी पढ़ रहे हैं, उसका नाम है स्क्रू गेज। क्या नाम है, स्क्रू गेज। लिखो सभी लोग। जैसे हमने लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना अबाउट वर्नियर कैलिपर्स, है ना, और उसके पहले एक बार हमने लीस्ट काउंट के बारे में देखा था। सेम चीज इसमें भी है, ऑलमोस्ट सेम फॉर्मूला इसमें भी लगता है, ऑलमोस्ट सेम फॉर्मूला, ठीक है। सो जस्ट अ मिनट, आई एम ओपनिंग अ डायग्राम ऑफ स्क्रू गेज इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू, ताकि चीजें क्लियर हो जाए। So yes, so bringing the diagram of a screw gauge for all of you, right? तब तक के लिए जो अभी हमने क्वेश्चन किया है उसको कंप्लीट करो बच्चा लोग, फिनिश इट। एक बार दोबारा देख लो हमने क्या किया। ये सब बहुत छोटी चीजें हैं बट एट द सेम टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो, ठीक है। द मोर केयरफुल यू आर द बेटर यू विल लर्न। तो देख लो एक बार, ठीक है। तो जस्ट अ सेकेंड,